Good morning everyone. Today we are going to start with unit 5, and first topic which we are going to learn about is parallel programming models. So what is parallel programming models? So it is nothing but it provides the abstraction to parallel architecture. Parallel programming models actually gives the view of parallel computer architecture to programmer or the user which are interacting with that parallel computer architecture. So एक तरीके से अगर हम समझें कि पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है, तो इट इज़ वेरी एनालॉगस टू जो कि हम पढ़ते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल C++ या प्रीवियस सेमेस्टर्स में जो हमने पढ़ा कि प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉडल को समझना ज़रूरी होता था. वो मॉडल हमें ये बताता था कि हाउ टू डेवलप अ प्रोग्राम फॉर अ कंप्यूटर to perform some tasks. In the same way, these parallel programming models are actually an abstraction, or you can say it is a way of representation of programs which are to be developed for parallel computer architecture. So in general terms, you can say it is nothing but collection of program abstraction which provides a simplified and transparent view of computer hardware and software system, specifically of a parallel computer system. Now as the name suggests, parallel programming model, so it is specifically designed for multiprocessor and multi-computer systems. So there are 5 types of parallel programming model which we are going to study in our syllabus, which are mentioned here in this slide. Is shared variable model, second one is message passing model, third is data parallel model, fourth is object oriented model, and fifth one is functional and logic model. So we will discuss each and every model one by one. So moving on to shared variable model. Shared variable model, as its name suggests, that it is actually used in a shared memory multiprocessor. It is actually used to develop the program for shared memory multiprocessor. अगर आपको याद हो तो पिछली यूनिट में हमने SIMD कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ा था, जिसमें हमने 2 तरह के आर्किटेक्चर पढ़े थे, शेयर्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो है शेयर्ड वेरिएबल मॉडल, ये हम यूज करते हैं व्हेनेवर वी वांट टू डेवलप प्रोग्राम्स फॉर शेयर्ड मेमोरी मल्टीप्रोसेसर और शेयर्ड मेमोरी SIMD organization. So basic computational unit is process in this shared variable model, जिसका granularity डिपेंड करता है मॉडल टू मॉडल. कौन सा प्रोसेस कितना बड़ा है वो डिपेंड करेगा प्रोग्राम टू प्रोग्राम या मॉडल टू मॉडल. नाउ this shared variable communication can be accomplished by using mutual exclusion and critical section. तो आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या है और क्रिटिकल सेक्शन क्या है. म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज एक्चुअली a property where a process or a thing can be used by one entity at a time, and same is the critical section which can be accessed by one process at a time. So इश्यूज क्या है इस मॉडल में, तो पहले हम समझ लेते हैं कि मॉडल काम कैसे करता है, फिर हम इश्यूज देख लेते हैं. सो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो बीच में एक ये सर्कुलर पोर्शन जो बना हुआ है, ये एक इलिप्टिकल पोर्शन बना हुआ है, इसे हम शेयर्ड मेमोरी कह रहे हैं. ये शेयर्ड वेरिएबल्स हैं कॉमन मेमोरी में. एक्चुअली शेयर्ड वेरिएबल का मॉडल या शेयर्ड मेमोरी मॉडल जो है, कई जगह आप इसको शेयर्ड मेमोरी मॉडल के नाम से भी देखेंगे. सो इसमें होता क्या है कि आपके पास एक शेयर्ड मेमोरी होती है, जैसे कि यहाँ पे सेंटर में बना हुआ है, और बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसर्स होते हैं या प्रोसेस होती है. ये प्रोसेसेस जो अलग अलग लिखी हुई हैं, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अलग अलग प्रोसेसर्स हैं जो एक कॉमन मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और जो भी चेंजेस एक प्रोसेस इस मेमोरी में करेगा वो रिफ्लेक्ट होगा प्रोसेस दूसरे जो प्रोसेसर इस मेमोरी को एक्सेस कर रहा है. सो देयर इज नो नीड टू अपडेट इट फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस. if one process is going to change something in this shared memory, it will be reflected to all other processes.
सो यहाँ पे एक इश्यू क्या आएगा, आप देखिए पहला लिखा है प्रोटेक्टेड एक्सेस। प्रोटेक्टेड एक्सेस ऑब्वियस ही बात है, इफ ईच एंड एवरी थिंग इज विजिबल टू एवरी प्रोसेसर, सो यहाँ पे प्रोटेक्शन वाला इश्यू तो आएगा ही आएगा, ठीक है। मेमोरी कंसिस्टेंसी की बात करें तो यस, मेमोरी कंसिस्टेंसी का एक इश्यू इसलिए आएगा बिकॉज आपसे मैंने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया है अबाउट हजार्ड्स। हजार्ड्स होते हैं एक्चुअली जब भी हम डेटा मैनिपुलेशन करते हैं किसी कॉमन मेमोरी एरिया में, तो उसमें हजार्ड्स आते हैं। व्हाट आर हजार्ड्स? हजार्ड्स आर नथिंग बट जैसे रीड आफ्टर राइट, राइट आफ्टर रीड एंड राइट आफ्टर राइट, तीन तरह के हजार्ड होते हैं। रीड आफ्टर रीड जैसा कोई हजार्ड नहीं होता, बिकॉज किसी भी कॉमन मेमोरी को अगर एक आदमी पढ़े, दो आदमी पढ़े, तीन आदमी पढ़े, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। बट what happens in read after write, write after write or write after read? Suppose processor A or process A wants to access some data X from the shared memory. Okay, so and before accessing that data X, processor B writes make a write into that data X and the value of X gets changes. तो यहां क्या हो रहा है, रीड आफ्टर राइट हो रहा है। ये हजार्ड क्यों क्रिएट करेगा? क्योंकि हो सकता है प्रोसेसर ए को बिफोर अपडेट वाली वैल्यू चाहिए थी एक्स की, बट चूंकि प्रोसेसर बी ने उससे पहले राइट कर दिया, तो अब उसको उसकी मॉडिफाइड वैल्यू मिलेगी, जिससे प्रोसेसर ए के रिजल्ट्स में डिफरेंस आ सकता है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ हजार्ड विच कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर अल्टीमेट सॉल्यूशन। Similarly, what is read after write? Sorry, write after read. What happens? Let us suppose कि आप प्रोसेसर B को कोई डेटा, जैसे अपन इसको ऐसे समझें कि सपोज प्रोसेसर B को कोई डेटा X को एक्सेस कर रहा है और राइट आफ्टर रीड। सो एक्स को एक्स पे राइट करना है, लेट से प्रोसेसर बी को किसी डेटा एक्स पे राइट करना है, चेंजेस करने हैं, कुछ मॉडिफिकेशन करना है, तो और प्रोसेसर सी को उस डेटा को एक्सेस करना है। सो अगर इसका ऑर्डर चेंज होता है राइट आफ्टर रीड, मतलब राइट रीड के बाद हुआ, तो वैल्यू जो एक्सेस होगी वो डिफरेंट हो जाएगी, और फिर वही बात कि अल्टीमेट सॉल्यूशन में डिफरेंस आएगा, रिजल्ट में डिफरेंस आएगा। सो दिस कैन आल्सो क्रिएट हजार्ड। एंड राइट आफ्टर राइट में ये होगा कि x की वैल्यू, लेट अस से x की वैल्यू में कुछ मॉडिफिकेशन b को करना था, तो वो x डैश बनता, ओके, एंड x डैश में कुछ मॉडिफिकेशन c को करना था, तब वो x डबल डैश बनता। लेकिन अगर इसका ऑर्डर चेंज हो जाए तो मे बी पॉसिबल कि रिजल्ट में चेंजेस आए एंड इट कैन क्रिएट हजार्ड। सो ये जो हजार्ड्स हैं, ये दूसरा जो इशू है यहाँ पे दिख रहा है, मेमोरी कंसिस्टेंसी, इसको वो करेगा। थर्ड इज shared data resources. Obviously data resources, all data resources are shared, and if somebody is accessing, जैसा कि ऊपर लिखा है, critical section और mutual exclusion को follow करेगा, तो shared data resources, some resources if being used by some processor, so another processor will not be able to access that data at same time, right? So this shared data resources is also a issue with this model. एंड एटॉमिसिटी ऑफ मेमोरी ऑपरेशन विल ऑल्सो बी देयर, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन यूज कर रहे हैं, एक बार में एक ही ऑपरेशन हो सकता है, दो ऑपरेशन हम कर नहीं सकते, ओके। सो दिस इज अबाउट शेयर्ड वेरिएबल मॉडल। शेयर्ड वेरिएबल मॉडल में आप ध्यान रखिए इस डायग्राम को, और ये याद रखिए कि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो आपका शेयर्ड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन जो हमने पढ़ा था पिछले यूनिट में, अगर आपको याद नहीं है तो आई विल रोल बैक दी स्लाइड्स एंड विल शो यू दिस इज द शेयर्ड मेमोरी मॉडल। अगर आप ध्यान से देखें, हमने पढ़ा था कि यहाँ पे हर प्रोसेसिंग एलिमेंट की जो जुड़ा हुआ है उस नेटवर्क में, वो एक शेयर्ड मेमोरी को यूज करता है। दिस SM1, SM2, SM3, SM4, what are these are modules of shared memory. So processing element 1 can access SM1 also, SM2 also, SM3 also, or
any module of the memory because it is a part of shared memory, right? तो ये जब भी हमको इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोग्राम डेवलप करना होता है, कुछ वे ऑफ डिजाइनिंग प्रोग्राम चाहिए होता है, तो दैट वे ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और वे ऑफ डिजाइनिंग प्रोग्राम इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय shared variable model. Now moving on to next type of model, that is message passing model. What happens is, देखिए दो ही तरह के मॉडल्स प्राइमरी हैं जो हमें पैरेलल प्रोग्रामिंग मॉडल पढ़ना है. फर्स्ट वन इज जो अभी हमने पढ़ा शेयर्ड मेमोरी मॉडल, शेयर्ड वेरिएबल मॉडल, और दूसरा है मैसेज पासिंग मॉडल. बाकी मॉडल्स एक तरीके से कह लें कि उसी में से डेराइव हुए हैं, स्पेसिफिक एप्लीकेशन को डेडिकेटेड है. दो मॉडल्स को अगर देखें, दीज टू मॉडल्स actually represents the parallel all the things in of parallel programming model. So what is message passing model? Now in this message passing model, what happens that it is, first of all I would like to specify here that it is meant for implementation or development of programs of a distributed memory model or distributed memory organization, sorry, जो कि हमने यहाँ फिर से मैं रोल बैक करूंगा और दिखाऊंगा आपको. ये शेयर्ड मेमोरी मॉडल था. सिमिलरली वी लर्नड अबाउट डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी मॉडल, जहां पे हमने क्या देखा था कि हर प्रोसेसिंग एलिमेंट के पास अपनी खुद की लोकल मेमोरी है. ओके, सो प्रोसेसिंग एलिमेंट 1 की खुद की लोकल मेमोरी है, प्रोसेसिंग एलिमेंट 2 की खुद की लोकल मेमोरी है, और ये प्रोसेसिंग एलिमेंट 1 जो है या प्रोसेसर 1 जो है, it will not be able to access local memory 2 or local memory 3. It will be only allowed to access its own local memory. So this is type of distributed memory model. Now तो actually हो क्या रहा है, we are performing parallel computation. Okay, parallel processing कर रहे हैं. And what is parallel processing actually? Parallel processing is actually division of a big task into smaller parts, and हम उसको parallelly अलग अलग functional units में perform करके results को जल्दी calculate करते हैं, right? तो इसमें dependency होगी obviously. जरूरी नहीं है कि प्रोसेसिंग एलिमेंट 1 या प्रोसेसर 1 अपनी लोकल मेमोरी 1 में से जो डेटा प्रोवाइड हो रहा है उसको दैट इज सफिशिएंट फॉर इट. इट मस्ट हैव सम डिपेंडेंसी ऑन अदर मेमोरी मॉड्यूल्स ऑल्सो, या किसी और प्रोसेसर के आउटपुट जो होगा, जो उसकी लोकल मेमोरी में सेव होगा, उसका रिजल्ट उसको चाहिए होगा. So dependency will exist. Now how this dependency will be solved? Now this dependency will be solved through this message passing mechanism या message passing model जो हम पढ़ रहे हैं. यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके, अगर दो प्रोसेस रिसाइड कर रहे हैं किसी प्रोसेसर में, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं थ्रू पासिंग द मैसेज बाय आइदर बाय डायरेक्ट नेटवर्क और बाय इनडायरेक्ट नेटवर्क. दैट इज नॉट एन इश्यू. The message may be some instruction or data or synchronization or interrupt signals, but they can communicate by using some messages like send or receive message. Communication delay in message passing is more in comparison to accessing the shared variable. यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने में कम समय लगेगा बिकॉज मेमोरी हमारी कॉमन है वहाँ पे. यहाँ पे हमें अलग अलग मेमोरीज हैं जिसके बीच में मैसेज पास करके हमें उनका डेटा एक्सेस करना है. दो तरह का मैसेज पासिंग अप्रोच यूज करते हैं हम, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस. सिंक्रोनस इज समथिंग विच इज बाउंडेड बाय टाइम clock cycles, and asynchronous is something which is free from clock cycles. वहाँ पे हैंड शेकिंग मैकेनिज्म का यूज होता है, मतलब सेंड और रिसीव मैसेज जो होता है वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब हैंड शेकिंग परफॉर्म हो जाती है, हैंड शेकिंग प्रोटोकॉल परफॉर्म हो जाता है. हैंड शेकिंग आपने कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी पढ़ा होगा कि व्हेनेवर सेंडर वांट्स टू सेंड सम मैसेज टू रिसीवर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट सेंड सम कंट्रोल सिग्नल टू रिसीवर, और जब कंट्रोल सिग्नल का एक्नॉलेजमेंट रिसीवर भेजेगा देन इट कम्स टू नो दैट रिसीवर इज रेडी टू रिसीव दैट सिग्नल, तो भेजा जाएगा. दिस इज अ सिनेरियो ऑफ एसिंक्रोनस मैसेज पासिंग. और सिंक्रोनस में तो सिंस इट्स नेम सजेस्ट सिंक्रोनस, तो यहाँ पे क्लॉक साइकिल से कंट्रोल होगा, मॉनिटर होगा पूरा सिस्टम, और जब वो क्लॉक साइकिल जनरेट होगा तो आपका मैसेज सेंड और रिसीव हो सकेगा. उसके बीच में कोई भी मैसेज सेंड और रिसीव
प्रोसेसर्स आपस में नहीं कर सकेंगे। सो दिस इज अ वेरी सिंपल ब्लॉक डायग्राम, आप यहाँ से समझ सकते हैं। आप समझे यहाँ पे ये दो प्रोसेसर्स है, आई एम नॉट सेइंग दीज आर प्रोसेस, आप प्रोसेसर से समझो। ये दो प्रोसेसर है, इन दो प्रोसेसर के पास खुद की मेमोरी है। ओके, नाउ अगर इन दो प्रोसेसर्स को आपस में कम्युनिकेट करना है तो इनकी मेमोरी आपस में सेंड और रिसीव का मैसेज भेजेगा थ्रू सम कम्युनिकेशन चैनल विच कैन बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, और आपस में ये डेटा को शेयर कर सकेगा। दिस इज इंटर प्रोसेसर कम्युनिकेशन विच इज बीइंग परफॉर्म बाय यूजिंग मैसेज पासिंग मैकेनिज्म। सो दिस इज मैसेज पासिंग मॉडल जो कि हम यूज कहाँ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ SIMD कंप्यूटर्स, पैरेलल कंप्यूटर्स को प्रोग्राम करने के लिए, उनका एक आप कह सकते हैं उनको एक व्यू देने के लिए इन सिंप्लीफाइड मैनर। सो दिस इज अबाउट मैसेज पासिंग मॉडल। फर्दर मॉडल्स हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन सेंड मी थ्रू मैसेजेस, और इसके नोट्स मैं आपको आज की क्लास के बाद प्रोवाइड कर दूंगा ऑन योर ग्रुप्स। थैंक यू सो मच।